Hello students, hope you are all doing good. So in today's class we are going to study SS of class 7th social science chapter number 1, two big states. Means we are going to study about ancient India, and in that we are going to study about two big states of ancient India. Okay, the first one is Kanauj. Okay, and the king over there was Harshvardhan from 606 to 647 century. King Harshvardhan was born in 606 century after the death of his father Prabhakarvardhan. Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajyavardhan was killed by the king of God Shashank. Their sister Rajyashri was imprisoned by the king of Malwa, Devgupta. Under these circumstances, advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar. Presently, that is in Punjab or Haryana. तो किंग हर्षवर्धन का जन्म 606 सेंचुरी में हुआ था. उसके पापा के मरने के बाद, जो प्रभाकर वर्धन था, उनके पापा के मरने के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजा बन गया, लेकिन गौड़ के किंग शशांक ने उसको मार दिया और उसकी बहन को मालवा के राजा देवगुप्ता ने इम्प्रिसन्ड किया. और इन सब सर्कमस्टेंसेस के बीच में हर्षवर्धन को राजा बनाया जाता है. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyashri. In the meanwhile, she escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. He went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and the Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. Since Rajyashri's kingdom Kanauj was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later defeated Devgupta, the king of Malwa. और जैसे ही वो राजा बना, उसका पहला काम था कि वो अपने बहन को वहाँ से छुड़ा ले आए. लेकिन उस बीच में क्या हो गया, उसकी बहन देवगुप्ता के हाथ से बचकर भाग निकली और हर्षवर्धन उसकी तलाश में जंगलों में उसको ढूंढ लिया. वहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद से और वहाँ का एक बुद्धिस्ट हर्मिट की मदद से क्या किया, उसको सती करने से उसको रोक दिया. उसके बाद हर्षवर्धन वहाँ का रूलर बन गया और उसके बाद उसने देवगुप्ता, जो मालवा का किंग था, उसको युद्ध में हरा दिया. As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the Gaud king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Bhaskaravarman. With the help of a large army, defeated the Gaud king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. उसके बाद शशांक के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने दूसरे राजा के साथ अलायंस क्रिएट किया, जो आसाम का था. उन दोनों की मदद से उसने क्या किया, शशांक के ऊपर हमला बोला और उसको अपने कब्जे में कर दिया. और उसके बाद आजू बाजू के सारे मालवा, सौराष्ट्र, इन सब जगहों पर उसने अपना कब्जा जमा दिया. लेकिन पुलकेशी II, जो चालुक्य डायनास्टी का किंग था, उसको वो हरा नहीं पाया और 7 साल तक कंटिन्यूसली जीतने के कारण उसका जो राज्य था वो साइज में बहुत काफ़ी बड़ा हो गया. हर्षवर्धन सिंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to the public welfare and religious activities. He was also diligent in carrying out his administrative responsibility that at times he even forgot to have his. तो हर्षवर्धन क्या करता था, अपने देश की जो कुछ भी कार्य करता था, देश के अंदर घूम फिर कर देखने के बाद क्या करता था, देश को चलाता. और उसने अपना हर रोज दिन का कार्य को 3 भागों में विभाजित किया था. पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और दूसरा जो 2 पार्ट था वो पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी. कभी कभी वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते कि अपना खाना भी भूल जाता था. नेक्स्ट पेज. इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय Harshvardhan.
Harsh built many rest houses, wells, step wells, lakes, mathas and viharas, and also prohibited animal slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. There he would donate generously till his entire treasure was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. और हर्षवर्धन ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स ये सब लोगों के कामों के लिए बनाया था, और एनिमल को स्लॉटर करना भी उसने बैन कर दिया था। और हर साल उसने एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, और हर 5 साल में एक बार वो प्रयाग में बड़ा सा एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, ऑर्गेनाइज किया था। और उस मीटिंग में क्या करता है, वो बहुत दान, जब तक उसका ट्रेशर मीन्स भंडार खाली नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता रहता है, दान करता रहता है। कभी कभी वो अपने पहने हुए गहने को भी क्या कर देता है, दान कर देता है। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर Banbhat adorned his court. His famous works Harshcharitra and Kadambari are famous even today. We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's reign from Harshcharitra. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, Naganand, Ratnavali and Priyadarshika. ओके, और उस टाइम का सबसे जो बड़ा जो संस्कृत का जो कवि था वो उसके कोर्ट में मिली, उसका नाम था बानभट्ट। ठीक है, जो बानभट्ट ने जो लिखे हुए किताब का नाम है हर्षचरित्र एंड कदम्बरी। और हर्षचरित्र जो किताब है उसमें हम राजा हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ उसमें लिखा हुआ। और किंग हर्षवर्धन भी खुद एक लेखक, उसने 3 बुक लिखे, और नगानंदा, रत्नवाली एंड प्रियदर्शी। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी इज नालंदा यूनिवर्सिटी। उस टाइम का जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silabdara and made Nalanda into a world-famous university. The university had access to the revenues of 100 villages given to by King Harsh for its upkeep and maintenance. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. और उस टाइम का सबसे बिगेस्ट फेमस यूनिवर्सिटी वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसने आचार्य सिलबदरा को सारा हेल्प प्रोवाइड करने के लिए उसने हेल्प किया। और जो 100 विलेज से जो पैसा हर्षवर्धन इकट्ठा करता था उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे दिया। और वहाँ का केमिस्ट जो आचार्य नागार्जुन था उसने ये प्रूफ किया कि आयरन, आर्सेनिक एंड मर्कुरी को हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता था। तो कुछ बातें जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानना ये है कि वहाँ पर अगर किसी बच्चों को एडमिशन लेना है तो नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। फ्री लॉजिंग एंड फ्री एजुकेशन बोर्डिंग में प्रोवाइडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। एजुकेशन भी वहाँ का बिल्कुल फ्री था, रहने की व्यवस्था, बोर्डिंग व्यवस्था, सब कुछ क्या था वहाँ पर फ्री में दिया जाता है। और वहाँ का जो बड़ा लाइब्रेरी है उसका नाम है धर्मगंज। ठीक है, तो वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी इन सारे बातों के लिए फेमस होता था, और काफ़ी दूर दूर से बच्चे क्या करते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। नेक्स्ट वन इज द लाइफ ऑफ पीपल। इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ किंग हर्ष इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यून। Towns and villages of times were fortified and had huge gateways at their entrance. The society was divided into 4 groups. While the Purad system and the intercaste marriages were not prevalent at that time, the customs of Sati's child marriage and polygamy had started by then. The local diet consisted of milk and milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. Okay, तो चाइनीज ट्रैवलर जो था ह्यून त्सांग, उसके लेखक से हमें हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते। उनका सिटी बहुत सिक्योर था और हर जगह पर गेटवे बनाया गया था। सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलता था, सिस्टम ऑफ सती चलता था, और चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगमी उस टाइम तक चालू हो गया था। और खाने में वो लोग मिल्क या मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। दे वॉन्ट क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स, मेन वो धोतीस एंड वुमेन वो एक साधारण सा सिंपल सा वाइट कपड़े पहनना वो लोग पसंद करते थे। मैन धोती पहनते थे, औरतें साड़ी
पहनते थे। ऑर्नामेंट्स वे मेड फ्रॉम flowers. Chess and games of dice were popular mean of entertainment. Acrobats and conjurers wandered from village to village entertaining people. उनका ऑर्नामेंट्स जो फ्लावर से बने हुए ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे। चेस और गेम ऑफ डाइस उनका एंटरटेनमेंट का तरीका था। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द production. Internal and international trade was carried out by Vaishyas. A highway from Patliputra to Burgu-Kutch port was built by the state for trade and transportation of. उनका मेन काम था जानवरों का पालना और फार्मिंग करना, और इसके अलावा इंटरनेशनल और इंटरनल व्यापार भी वहाँ पर चलता था। पाटलिपुत्रा से लेकर भरूच तक हाईवे बनाया गया था ताकि वो लोग आसानी से सामान इधर उधर ले जा सके, व्यापार कर सके। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वे यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन. गोल्ड या फिर चांदी के सिक्के अपने व्यापार के लिए लेन देन में वो लोग इस्तेमाल करते थे. ऑर्नामेंट, स्टैच्यूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड. एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर prosperity. During the reign of King Harsh, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism, but were tolerant towards other religion. और विदेशों में भी क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था. जैसे ऑर्नामेंट, स्टैच्यूज, आइवरी, वुडन आइडल्स, ये सब हम क्या करते थे, व्यापार करते थे. और उसके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया का रोम के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था. उसके कारण क्या होता था, वहाँ से सोना आता था. और पीपल मोस्ट रिलीजन दे फॉलोड वॉज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. लेकिन हर रिलीजन को क्या करते थे वो लोग अपनाते थे. नेक्स्ट योन सन 1629 1645 सेंचुरी. एक ट्रैवलर था जो चाइना से आया हुआ था हर्षवर्धन के टाइम पर. उसने बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में नालंदा में 5 साल तक पढ़ाई किया. There were 100 Buddhist monks in Harsh kingdom. The people lived in simple, pious and peaceful life based on living by rules of good, moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. और उस टाइम पर जो हम पढ़ने चाह रहे हो, ह्यून संग ने जो लिखा था उसके बारे में हम पढ़ने चाह रहे हैं. तो उसके हिसाब से 100 बुद्धिस्ट monks हर्ष के किंगडम में मौजूद थे. और उसके अलावा लोग शांति से, पवित्र और साधारण सी जिंदगी जीते थे. सबकी भलाई करने पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे. चीटिंग और वायदों को तोड़ना पाप माना जाता था. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India, early defeated Harsh. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. ओके, नॉर्थ इंडिया के बारे में. नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का किंगडम था और हर्षवर्धन के किंगडम में क्या क्या हुआ था, कौन कौन आए थे, किस प्रकार वो देश को चलाता था, अपने राज्य को चलाता था. नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वट्टापी. वट्टापी वॉज ऑल्सो द बिगेस्ट किंगडम इन साउथ इंडिया. वहाँ का राजा था पुलकेशी सेकेंड. पुलकेशी सेकेंड हमेशा क्या करता था, हाँ, किंग हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकेंड को बीच में लड़ाई भी होती थी और हमेशा पुलकेशी सेकेंड हर्षवर्धन को हरा देता था. रूट टू द थ्रोन. द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड a vast empire in South India which they ruled from the capital at वट्टापी. चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के राजा लोग साउथ इंडिया में राज करते थे और उन्होंने अपना राज्य, अपना कैपिटल वट्टापी को बनाकर वहाँ से वो लोग राज्य करते थे, जो कर्नाटका में है. पुलकेशी फर्स्ट, ए ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ. हिज फ्लैग हेल्ड द सिंबल ऑफ वराहत्वतर. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was successful by his brother Manglesh who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. वहाँ का पहला का राजा था पुलकेशी II और उसके बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मा राजा बन गया और उसके बाद उसका भाई कीर्तिवर्मा का भाई मंगलेश राजा बन गया. मंगलेश ने बड़ा सा एक वटापी में विष्णु टेम्पल बनाया था. और उसके बाद पुलकेशी II राजा बन गया जिसने 30 साल तक राज्य किया. Next page, that Pulkeshi II, we are going to study about Pulkeshi II. He born in 1610th century. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. First victory was over Lath, followed by his win over Gurjar
He gained control over the Vengi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. He transferred the capital Vatapi into city of magnificence and splendor. पुलकेशी बहुत युद्ध किया हुआ एक राजा। उसकी पहली जीत लाद जो साउथ गुजरात में है और उसके बाद गुर्जर नॉर्थ गुजरात में, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद वेंगी रीजन जो कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में आता है, और उसने आंध्र प्रदेश को भी अपने कब्जे में कर दिया और वाटापी को उसने बहुत खूबसूरत शहर के रूप में बदल दिया। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड फॉट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड. This halted Harsh expansion towards South India and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. और उसके बीच में हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड का नर्मदा के किनारे पर एक बड़ा सा युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशी ने हरा दिया। इस कारण से हर्षवर्धन क्या नहीं कर पाया, साउथ इंडिया पर कब्जा नहीं जमा पाया। पुलकेशी सेकंड was not only a great warrior but also a lover of arts. The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his केवल वो बहुत ही बड़ा एक योद्धा नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, कला से भी उसको कला उसे बहुत पसंद थी। वटापी एंड दारापुरी के जो केव से मीन्स गुफा है जो उसके टाइम पर बनाया गया था। द फेमस केव murals of Ajanta were also painted at that time. In his travels, Huon Sung visited the court of Pulkeshi II and given a vivid account of his grandeur. The king of Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. और ह्यून संग ने पुलकेशी सेकंड के राज्य में भी गया और उसके बारे में भी अपनी किताब में लिखा हुआ है। चालुक्य डायनास्टी के राजा लोग हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। उस बीच में बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो कम होने लगा और दिगंबर जो जैन सेक्ट है वो पॉपुलर बनने लगे। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड वे कंटेम्परेरी रूलर्स, हाउएवर हर्ष फॉट फ्यूअर बैटल्स कंपेयर टू पुलकेशी हु कंटिन्यूड वेजिंग। हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड दोनों एक ही टाइम के राजा लोग थे, एक नॉर्थ इंडिया में था, दूसरा साउथ इंडिया में था। लेकिन हर्षवर्धन बहुत कम लड़ाई लड़ाया, लेकिन पुलकेशी बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ चुके हैं। He finally met his end in 1642 century in a conflict between Pallava king of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after. 1642 में वो पुलकेशी सेकंड मर गए। युद्ध में लड़ते लड़ते वो पालव किंग, कांचीपुरम का जो पालव किंग है उसके साथ लड़ते लड़ते मर गया। और उसके 5 साल के बाद हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया में था वो भी मर गया। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। Make sure you're completing your question and answers. Okay. So everyone, watch the video carefully and study. Thank you.